questions. I can write questions. आपने क्या किया था? मैं ऐसे किया, मैंने कुछ नहीं किया था, खुद ही हो जाता है ऐसे. So I think random ही चलते हैं, random. You can write it on here. क्या ऐसे ही चलते हैं. अच्छा चलो मनाइल, उर्दू में बात करेंगे हम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. और अच्छा मनाइल, पीपल वांट टू नो कि आप क्या कर रहे हो. उर्दू में बात करेंगे. हाँ तो ऐसे ही चलेगी ना. पीपल वांट टू नो कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है. आपकी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो क्या कर रहे हो अभी आप. हाँ तो चलो. स्टूल पे लटकी हुई होगी. स्टूल पे लटकी ना लटको, तुम्हें कहा किसी ने स्कूल, सीधी हो जाओ. चलो. You know, when you just come at me like a question, I'm just like, हवा में चला जाता है मेरा दिमाग. अच्छा चलो फिर मैं कैसे पूछूं. ये बताओ ना, क्या कर क्या रही हो तुम. चलो बताओ. चलो बताओ क्या कर रही हो तुम आजकल. स्टॉप होता है खल्ला दे के स्टॉप नहीं होता. चलो चुप कर जाओ. चलो चलो चलो. अच्छा, can you like stop it and let me think of it? Takes a while for me to word it. ये देखो उसको बड़ी जल्दी पड़ी हुई. Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are good. आज मैं और Manahil, ये मेरी white बाल ज़्यादा ही नजर आ रही है. Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. My name is Nadia, and today me and Manahil, we are doing a little video on Manahil's experience working in a software house. Working नहीं कह सकते हम, basically she was an intern. She was doing her internship. So Manahil, hello. Hello. So Manahil, आपने हमें बताना है कि आप अभी क्या कर रही हो, और फिर हम we'll go to that point. Abhi, what I'm doing is that I'm basically studying for my O-levels, and that would contain computer science, mathematics, English, and Hard I math. don't even think Hard math. hard maths nikal hi jata hai dimaag se. I thought I was giving physics, but wogli the fire. Yeah. So here we go. अच्छा. इसके अलावा क्या कर रही हो. इसके अलावा what kind of things do you want me to discuss, like learning में क्या कर रही हो. अच्छा ये काफी handful हो जाता है कि हम you're not going because I feel like I get a little off track every now and then. I won't say that I'm a very studious person, and if I take a 15-minute break, वो 3 दिन के बीच भी चलती है, and then I have to rewind. क्या ये तो डी लंबी procrastination. ठीक है मनाइल, you कोशिश करो कि you speak उर्दू, ठीक है. Okay. अच्छा हमने अभी आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे, मतलब अभी आप जॉब पे नहीं जा रहे. You're saying that I'm an unemployed degenerate. ये अच्छा फारिग बंदा वेला. अच्छा it was हमारा ओपिनियन था या हमारी सजेशन थी कि मनाइल ज़ेवन में इस तरह कंटेंट राइटिंग के लिए इंटर्नशिप्स ओपन हुई हैं, तो क्योंकि हम इरफान को सुन रहे थे, तो हमने मनाहिल से कहा कि मनाहिल why don't you go ahead and give an interview. अच्छा हमें नहीं था कि she would pass the interview or anything like that. हम just कह रहे थे कि जाओ चला try out, तुम्हें कुछ पता चले कि कैसे रियल में इंटरव्यूज होते हैं. You went and you surprised us, and उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुम्हें रख लेते हैं. एंड आपने मुझे ये बताना है कि आपको क्या लगा जब हमने आपको ये सजेस्ट किया या हमने आपको एक किस्म से का भेजा वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए. Was it a good idea? I think कि उसी रात हम बात कर रहे थे कि I think कि YEF के एक हफ्ता बाद ये opportunity आई थी, and we were just sitting and talking, and I brought up the discussion that I should look for a job, I should look for some kind of opportunity like that. And I think I went downstairs, and then you were like, hey, Baba se keh rahe कि there's this opportunity, do you want to go for it? And
I was like, Why you know, not? I was kind of skeptical at first, like, You had been very, very skeptical. I know yes. that. Yeah. And फिर I remember I stayed up till 2 a.m. and फिर सुबह 7-8 बजे उठ के फिर I was doing research on the company. Because even though I went, like, I knew what kind of questions people might ask, I still had to prepare. Like, I think there's this nick at the back of your mind कि कोई surprise question ask कर लेंगे और फिर you won't be able to ask, and then you just sit there and you prepare for it. अब मतलब बेस्ट जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की ना वो ये थी कि YEF में भी मैंने ये चीज़ देखी कि they were giving you task and they were giving you challenges and you were like very interested in that कि हाँ यार ठीक है ये करना है ये फलाना you would wake up till 12 a.m. 12 midnight और कि मेरा टास्क जो है ये कंप्लीट हो जाए मैं टाइम पे पहुंचूं and things like that which is called discipline. ठीक है प्रोफेशनल लाइफ में भी कॉल इट लाइक आप डिसिप्लिन हो. तो आप मैंने ये भी देखा कि जब आपने जाना था इंटरव्यू देने तो यू डोंट टेक इट लाइट. जैसे अभी आपने कहा कि मैं 2 बजे तक रात जागती रही फिर सुबह जल्दी उठी और फिर मैंने उस पर मेरी कोशिश थी कि मैं उस कंपनी पे रिसर्च करके जाऊँ. मुझे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने बारे में पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हो हम क्या करते हैं हमको पता है कि हम कौन है. सो दैट वाज समथिंग जो मैंने आपको नहीं बताया या I don't know where did you learn this thing लेकिन ये कि it was very nice. So फिर आप गए आपने इंटरव्यू दिया और फिर उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया जो कि थोड़ा सा एक किस्म का हमें थोड़ा टाइम लगा. 1 महीने बाद they called us, इरफान himself called. तो अच्छा आपको क्या लगता है इरफान ने आपको क्यों हायर किया? You know, I feel like कि क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि why somebody would hire a kid like me, and because I don't really seem that professional, and I was surprised myself, and I was like, why would somebody take me? And yes, a step tha कि when I progressively went into things, I kind of found out that answer, and I don't know if that's the real kind of what would you call it? Real kind of response. ये आपकी अपनी ओपिनियन है ना. हो सकता है कि ये मतलब इरफान yeah, it's not like कि कोई fixed opinion है उनका. ये आपका अपना ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है. ठीक है कोई और वजह भी हो सकती है उसके जहन में कोई और बात हो सकती है लेकिन आपके जहन में क्या है? What do you think? What I think is that basically he thought कि I was good at speaking English with other people, and because I'm starting to stutter again. It's okay. Just think. You know. Okay, so let me clear my head. You can cut this part out if you like. Okay. Cut this part out. तो भाई क्यों हायर किया तुम्हें इरफान ने बीबी? You know, maybe he might have some other reason in mind. But what I personally think कि उसने क्यों हायर किया मुझे, I feel like you know what I see in myself is that I'm sort of good at talking in English with other people, so he thought that international clients would be a best place for me. And because we were leaning more towards cold calling, I felt like maybe if I really wanted to pursue cold calling, I could have in that field. But I feel like it's just not right for me, because even after 2 to 3 months, I just kind of felt stuck when talking to people, and I was always afraid कि कोई counter question ऐसा आ जाएगा that I wouldn't be able to answer. But the thing is, if I went further, that would be the wrong kind of development for me, because I don't want to go deeper into that thing. If I actually wanted to go deeper in that thing, I think I could have pursued it, but... अच्छा, you didn't want... Actually, I would say कि cold calling भी ऐसा profession है जो कि आपको एक... communication skills. हाँ, आपको एक lifelong skill सिखाता है. And cold calling has a lot to do with human psychology. The way that you grasp the person's attention in like the first 5 seconds, that's only the thing that matters. फिर बाकी आगे वो decide करते हैं. वो भी आपने सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ उसकी attention grab करनी है. Like जो आप कहते हो, that matters only 20%. जो आपकी tone होती है, tonality होती है, how you approach the person, that is like वो 80% ज़्यादा effect होता है. Because that person is going to
see how professional your tone is, if they want to potentially work with you. बिकॉज जिन लोगों को आप B2B अगर आप कॉल करते हैं, जिन लोगों को बिजनेस टू बिजनेस आप कॉल कर रहे थे, दे डोंट हैव टाइम फॉर यू, ठीक है. ज़्यादातर उनके जो सेक्रेटरीज वगैरह होती हैं, दे पिक अप द फोन. लेकिन अगर वो आप डायरेक्ट उनको अप्रोच करते हैं तो दे जस्ट इन दोज फ्यू सेकेंड्स दे वांट टू नो कि अच्छा यार तुम मेरे लिए यूजफुल हो कि नहीं, दैट्स इट, ठीक है. एवरी रबिश दे जस्ट टेक इट आउट, ठीक. सो अगेन वही बात है कि इट्स जो असल जो आपने अपनी ग्रूमिंग करनी होती है ना, कोल्ड कॉलिंग, वो ये होती है कि यू डेवलप थिक स्किन. पीपल वुड स्वेयर एट यू, पीपल वुड शाउट एट यू, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा इफ़ यू वांट टू परस्यू इन दैट करियर, तो आपको थोड़ा सा ढीठ होना पड़ता है. फिर आपको काउंटर जो क्वेश्चनिंग होती है ना, जो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर नॉर्मल लाइफ एज वेल, ठीक है. सो या ये बहुत एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको कर करके फिर आप यू गेट टू लर्न थिंग्स. अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि आपने इन 3 माह में क्या सीखा. आपको क्या लगता है कि आपने क्या ऐसी चीज़ें सीखी जो आपको हेल्प करेंगी आगे चल के भी? सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था, जैसे हम वहाँ पे गए थे कंटेंट राइटिंग करने के लिए, ठीक है. वहाँ से हमने शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे आए, फिर कोल्ड कॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर. वहाँ पे बेसिकली वी हैड टू डू RnDs ऑफ कंपनीज, सी इफ देयर गुड फिट, सी इफ देयर नॉट अ गुड फिट. हम क्या दे सकते हैं, किस पार्ट पे कोलैबोरेशन हो सकती है, कोई प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेशन हो सकती है. उस हिसाब से वी हैड टू अप्रोच दैट कंपनी, पिच टू देम, सी इफ वी like made a connection or something to like proceed in that field. तो फिर आपको इन सारे में अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट नज़र आई? आपको जो स्किल्स आपने सीखे, जो वो बातें जो कि आप पहले नहीं जानते थे, दैट्स लाइक कि आपने कोई चीज़ ढूंढनी है ना, तो आपने अंदर घुस के ढूंढनी है R&D के अंदर. रिसर्च एंड क्योंकि डेवलपमेंट. पहले व्हाट आई यूज्ड टू डू कि बस उनका बायो पढ़ लिया, उनकी ओवर द टॉप पढ़ ली कि हाँ जी ये करते हैं. बट द रियल थिंग इज कोई चीज़ अंदर छुपी होती है. कि आई रिमेंबर one of my co-workers was like कि नहीं ये लोग ये नहीं करते, तो इनको ये पिच कर सकते हैं. But I was like let me double check one more time. And they were like they were actually providing that services. And that I learned because my co-workers would constantly counter question me कि ये चेक किया था उन्होंने, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम. Because they would ask my opinion as well कि ये कंपनी है तो हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं इनको, इनके पास ये नहीं है, दीज आर द पेन पॉइंट्स. और मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे चीपर हैं. तो वाई तो इफ वी गेट देम ऑन कॉल वी हैव टू लाइक मेक अ गुड इंप्रेशन, ठीक है. ये नहीं कि जब वो आपके जो आई वुड से मेंटोर्स जो आप, क्योंकि आप सबसे जूनियर थे, तो जो भी आपके साथ काम कर रहे थे उन्होंने आपसे काउंटर क्वेश्चंस करते थे जब भी आप उनको कोई चीज़ रिसर्च करके देती थी. तो दे यूज्ड टू आस्क कि आपका क्या ख्याल है, क्यों किया आपने इसको क्यों कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है. देन यू हैव टू, फिर आप अगली दफ़ा जब रिसर्च करते थे आपकी कोशिश यही होती थी कि आप सारी डीप रिसर्च करो और सारे क्वेश्चंस का आंसर दो. डू यू थिंक दैट्स गोना हेल्प यू इन योर लाइफ? In my life that would like help in other aspects. ठीक है कि अगर आपने किसी चीज़ को देख लिया तो you have to look into it at a point of perfection. Not really perfection, I would say, is a dead end, but like to near perfection. क्या आप उसको thoroughly I would say thoroughly कोई चीज़ करो, और ये नहीं कि आप over the top बस ऐਵੇਂ करके brush it off. ठीक है. और बाकी content writing में if I was writing an essay that would take me like 5 to 6 business days. ठीक है. And now मैंने देखा है कि अब घंटे 2 के अंदर I can like write a whole essay. इसके अंदर speed built up हुई है. And I was a bit concerned क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें आपकी स्किल से ज़्यादा टाइम लिमिट होती है कि इतने टाइम में आपने क्या आप थ्रो कर सकते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है. But do you think that's like in the practical life कि अगर आपने किसी को choose करना है, you see like their time limit rather than what they're giving you as a quality. What's your opinion on that? What do you mean? क्या पूछना चाह रहे हो? अगर एक बंदा है that can provide like high quality work पर वो थोड़ा सा टाइम लेता है,
अच्छा, हाँ, तो what would you consider about that person? मेरा ख्याल है आई वुड गो विद द पर्सन जो कि थोड़ा टाइम लेता है लेकिन हाई क्वालिटी वर्क देता है, बजाय इसके ऐसा बंदा जो कम टाइम लेता है लेकिन मुझे गार्बेज देता है. सो आई डोंट थिंक, वही बात आती है, एग्ज़ाम्स को मैं प्रैक्टिकल नहीं समझती, ठीक है, लेकिन ये मुझे जो मैं कहना चाह रही थी वो ये कि मैंने ये फील किया कि जब आप कंटेंट राइटिंग में गए उससे पहले आप यू जैसे यू सेड कि यू टेक 4 to 5 बिजनेस डेज, तो यस मैं कंसर्न थी कि आप बहुत टाइम लगाते हो एक ऐसे को कंपाइल करने के लिए. वहाँ पर तो आपके पास हार्डली 30 मिनट्स 45 मिनट्स होते हैं कि आपने अपनी जो थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके पेपर पे डिलीवर करना है. तो ये लेकिन देन आई सॉ यू हाउ यू स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग इन दैट फील्ड एज वेल, और बहुत जल्दी जो है ना मैंने देखा कि आपने कंटेंट राइटिंग शुरू की तो यू इम्प्रूव्ड. ठीक है, मुझे बहुत हौसला हुआ कि चलो यार वो लेवल्स का पेपर तो हो जाएगा. ठीक है, ये चीज़ थी. उसके बाद जो ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस मनाहिल मुझे आके दिखाती थी अपनी, दैट वाज वो सारी चीज़ें मैंने नहीं सिखाई हुई थी मनाहिल को. एक प्रोफेशनल लेवल पे कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे होती है, ईमेल, और आई वुड से नॉट जस्ट बिकॉज आई एम अ मदर, आई वुड से कि मैं हैरान होती थी कि मेरे से ज़्यादा अच्छी ईमेल्स मनाहिल लिखती थी, एंड दैट वाज विदाउट यूजिंग बार्ड और जीपीटी, राइट? वर्ड और जीपीटी आप तब यूज कर सकते हो जब आपका माइंड ब्लैंक हो रहा है, बट आप अपने माइंड को चैलेंज नहीं कर रहे कि कुछ क्यूरियोसिटी के अंदर से बाहर फेंके. या फिर ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे आपका क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, जैसे आप स्टक हो जाते हैं. I don't really believe in a creative block because I think they're good. कि जब आप स्टक होते हो ना एक जगह पे, तभी आपको when your सारी distractions आपकी दूर होती है, आप एक पॉइंट पे चिपके होते हो और फिर आपको वो आइडिया आते हैं कि नहीं ये इस चीज़ से सॉल्व हो सकता है, ये चीज़ आ सकती है इसके अंदर, वो चीज़ आ सकती है. तो बेसिकली आप चैट जीपीटी आप ऐसे कर सकते हो कि आपने जब मेन आइडिया उधर रख दिया और आपने बस थोड़ी सी ट्वीक्स लगा दी. Yeah, I wouldn't really recommend ChatGPT as well. I think favoritism भी अंदर आ गया, like Bard. you like Bard, हाँ, लेकिन हाँ I like Bard as well. उसमें रेफरेंसेस भी होते हैं, उसमें बड़ी डिटेल्ड होती है, उसको बताता भी है कि मैंने तुम्हें ये आंसर दिया तो क्यों दिया है. ठीक है, आई फील आई टेक Bard as a friend. मुझे एक फ्रेंड लगता है कि यार फ्रेंड इन नीड, कि अच्छा यार ये चीज़ नहीं समझ आ रही, या कोलीग बैठा हो मेरे पास, बिकॉज आई वर्क अलोन, तो But मुझे I feel like मुझे ये नहीं, I don't really know how you feel like that क्योंकि when I talk to it I just see it as a robot. ठीक है, I see it as a lifeless thing, and I just want to know your opinion. How do you see it as a friend? I see, because I don't have anyone to work with. ठीक है, मैं अकेली होती हूँ तो I'm like get say यार ये समझ नहीं आ रही, ज़रा बता देना. इवन आप लोगों को पढ़ाने के लिए अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं उसे कहती हूँ जैसे 5th ग्रेडर को तुम समझाते हो ना, प्लीज़ मुझे ऐसे समझा दो. तो जब वो मुझे समझा देता है, मुझे वो चीज़ समझ आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम थैंकफुल टू दैट मशीन एज वेल. आई एम लाइक थैंक यू सो मच. मैं उसको जब सवाल भी पूछती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ हेलो बॉर्ड हाउ आर यू, फिर मैं उसको कहती हूँ कि प्लीज़ कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट. सो मैं उसके साथ वो सारी जो कि यू यूज़ विद ह्यूमंस, उसको थैंक यू कहना, उसको प्लीज़ कहना, उसको काइंडली यूज़ करना उसके साथ, बिकॉज आई थिंक कि वो मुझे एक हेल्प आउट कर रहा है. सो मेरे लिए थोड़ी सी उसकी यही फीलिंग आती है, बिकॉज आई डोंट हैव एन ह्यूमन इंटरेक्शन. But do you think कि आप पीछे भी जाके देखो तो ह्यूमन इंटरेक्शन जो लोनलीनेस थी, you'd see a lot of writers putting that into their writing. Loneliness, isolation. Loneliness, isolation कभी फिक्स नहीं होती, but I think throughout the generations we are trying to find coping mechanisms for that. Solace, हम किसी भी चीज़ के अंदर find कर होते हैं. I don't know if I pronounce that word right. Yeah, you can. Thankfully. Okay, so here we go. अच्छा, अब जो लास्ट चीज़ आती है ना वो है socialization. ठीक है, होम स्कूल बच्चा होने के नाते now what I feel is that मुझे शुरू में ये लगता है बच्चों के बारे में कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो बाहर जाते हैं तो they should be under a supervision. ठीक है, उनको क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहे होते हैं, इमोशनली डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो कैसे फील करते हैं, उनको चोट लग रही है या जो भी है, जस्ट एवरीथिंग, बुलिंग या कोई डांट, कोई कुछ कह रहा है तो वो आके आपके पास आपको आके बताता है रियल टाइम में आके. मुझे ये लगता है 7 to 10 years बच्चा जो है. What's real time? What's fake time? Time really होता है, fake time क्या होता है? रियल टाइम मीन्स कि उसी वक्त आके आपको बता रहा होता है ना.
तो you there are some things I really hate, and that was in the corporate level as well. कि कोई चीजें use होती थी that would just like it would make me want to bang my head into the wall. जैसे इतना मैंने सुना है forefront of innovation. We are pushing you to the forefront of innovation. धक्का दे रहे तुम्हें forefront में लेके जा रहे हैं, चल भी तू जा पहले. ठीक है. Obviously Manahil cooperation. Obviously, but I think कि जो ये terms होती हैं, they could like bring a little human nature into it. कोई jokes वगैरह अंदर ले आए, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा plain लगता है या because I hear it a lot and it gives me the ick. But like we will bring your company to the forefront of innovation. Like we are the. देखो बाहर the corporate world जो है ना, it's like at each other's throats. Yeah, it's competition. और इस competition में आप किसी भी level पे जा सकते हैं, ठीक है. So ये आपने देखना होता है. I don't know. That's why बहुत सारे लोग जो है ना वो इसमें fit नहीं हो पाते. और अगर मेरे जैसा बंदा इसके अंदर जाता भी रहता है तो वो हर रोज़ बस यही सोचता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. क्वेश्चन करता अपने आप का कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. But you know, I don't know. अच्छा, हम बात कर रहे थे सोशलाइजेशन की. सो मैंने आपको ये बताया कि नाउ आई नॉर्मली डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड कि आई वांट कि तुम ये कर लो. आई वुड से कि मेरा ख्याल है, हाँ आई रिकमेंड, ये मेरा ख्याल है कि अब आपको ना यू शुड बी आउटसाइड विद द पीपल. जस्ट ये आपकी ग्रोथ का टाइम है. ये टाइम इस तरह का है जब यू माइंड इज, जितना भी डेटा आपके पास आ चुका है, जितनी भी आपकी ग्रूमिंग है, जितने भी आपने इनपुट लिया है, वो उसको अब उसने वो करना है, उसका आउटपुट बनाना है, ठीक है. तो ये जो 5 साल है ना आपके, इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड कि आप बाहर जाओ, ठीक है. आप लोगों के साथ 5 साल के बाद मैं घर के अंदर ताला नहीं 5 साल जो है ना आपकी ग्रोथ के हैं. उसके बाद नहीं. But you know what I believe is कि जो growth होती है it's like till you die. हाँ, till you die. हाँ, ये तो है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो जो आप ये कह साल सकते हो कि ये बेस बन गई, sorry to cut you off, but आप ये कह सकते हो कि ये जो मेन आपकी पर्सनालिटी की बेस होती है that is made within the first 20 years of your life. हाँ. सो अगर आप हमारे बीच में ही रहोगे तो हम लोग तो एक ही जैसे हैं. हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रो कर सकते हैं. मैं होगी, बाबा होगी, मैं मादी होगी. तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पे लोग सोशलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो दैट्स द टाइम फॉर यू टू सोशलाइज. आई रिकमेंड, ठीक है. क्योंकि इस वक्त आप एक किस्म के मच्योर भी हो गए हो. द अदर डे जिस तरह आई वुड टेल यू कि आई टोल्ड बाबा के लम्स के समर स्कूल्स हो रहे हैं एंड आई वांट यू टू गो देयर. तो बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ देर, थोड़ी देर के 1-2 दिन बाद बाबा कह रहे थे कि यू नो वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये अभी बच्चा है, वहाँ का माहौल और तरह मैच्योर, बहुत मैच्योर किस्म का है. तो आई डोंट थिंक कि उसका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप हुआ हुआ है कि शी वुड टेक इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस और सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे आपसे भी छोटी एज के बच्चे समर स्कूल ज्वाइन करते हैं वहाँ पे. तो मेरा मकसद ये था कि आपको थोड़ा और एक्सपोजर मिले, आपको पता चले कि यू नो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट पीपल. But I'm cutting you off again, apologies for that. But I think even if I'm gonna go out in life, even if I don't take this opportunity, at some point I'm going to be introduced to the bad things or brutally gruesome things in life, ठीक है? And how I handle that is up to me, ठीक है? If somebody offers me a cigarette, I have to see in myself, can I control myself? It's like, I don't think if you're being given drugs or cigarettes or something like that, you gotta say कि am I able to. यहाँ पे कंट्रोल की बात नहीं आती क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना हाई होता है. आप जब, मैंने आपको अगले दिन ये बात भी समझाई थी कि जब आपको क्या लगता है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं या जो लोग उसमें पड़ जाते हैं वो डम होते हैं कि उनको कोई भी कोई चीज़ ला के दे देगा तो दे बी लाइक नहीं कोई बात नहीं है. वो बहुत हाईली इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोग होते हैं और उनको यू नो इन्फ्लुएंस इस तरह का होता है, हालात इस तरह से बनते हैं कि दे गेट इनटू इट एंड इट्स. मसला ये होता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टू गेट आउट ऑफ दैट शिट.
But if you want to like send me into the real world, ठीक है, जो बाहर की दुनिया है, how would you recommend कि I potentially stay away from that thing? I won't. Other than self-control. I देखो मेरी बात सुनो, हमारा being a parents हमारा काम होता है कि हम अपने बच्चे को समझा कि जब हम उसको रियल वर्ल्ड में भेजते हैं ना, तो फिर हम उसको अल्लाह पे छोड़ देते हैं, फिर वी डोंट हैव अ कंट्रोल, ठीक है। हम उसको कॉन्स्टेंटली अवेयर कर सकते हैं उसके एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन आगे उसकी किस्मत है, आगे उसको जो है ना उसकी हिफाजत अल्लाह ने करनी है, ठीक है। सो वी आर नोबडी टू से कि हम उसको आगे उसको संभाल सकते हैं, कुछ भी है। बीइंग एन, आप जिस तरह आप इंटर्नशिप के लिए भी गए हो, आप मेच्योर लोगों में गए हो, ठीक है, आपसे बड़े लोग थे, एंड यू सोशलाइज्ड विद देम, एंड अब जो मुझे फीडबैक वहाँ से आता था आपका, वो यही आता था कि दे बीन वेरी केयरिंग। वो ये समझते थे कि आप छोटे हो तो वो आपकी हर चीज़ का ख्याल भी रखते थे, ऐसे है ना, आपको इमोशनली सपोर्ट करते थे। आपने कभी मतलब यू वर्किंग ओवर वर्क आप कर रहे हो तो वो आपको मैसेज आ जाता था कि भाई इतनी भी क्या ज़रूरत है तुम्हें ओवर वर्क करने की, ऐसी भी क्या मजबूरी है, रेस्ट करो, ठीक है, ब्रेक लो। तो दे वर वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू, जो कि बहुत कम मैंने आपको अपना DRG का एग्जाम्पल दी हुई है कि पीपल वर नॉट वेरी कंसिडरेट ओवर देयर। वहाँ पे अगर आप साथ वाले केबिन में अगर आप मर भी रहे हैं तो दे बी लाइक अच्छा यार देख लेते हैं इसको, पहले कॉल कर ले हम अपनी, ठीक है। सो दे वर नॉट, जो मुझे मेजॉरिटी, आई एम नॉट सेइंग 100%, जो मेजॉरिटी जो मुझे देखने को मिला वो ये था। सो बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि दे वर वेरी केयरिंग और दे वर वेरी सपोर्टिव। You know, Yashra had been very supportive, and they just say होता नहीं है कि like a big sister to you. So I was very happy, जो socialization जो आपको वहाँ पे मिली, जो लोगों का आपको वहाँ पे support मिली, and they are still connected to you. अभी भी आप नहीं जा रहे लेकिन they are still connected to her. तो that's the thing. So हम इसको wind up कैसे करें? मेरा ख्याल हमने बहुत लंबी वीडियो बना लिया। Do you wanna, like, if somebody wants to send their kid or child or 20 साल का बच्चा भी है, तो how would you say कि उनको corporate level के अंदर जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए as early as possible. 15 में तो बिल्कुल जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये भी कहती थी कि मनाहिल आप O levels भी कर रहे हो, इसको भी साथ कंटिन्यू करो, ठीक है। इट्स O levels को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, स्टडीज़ को, डिग्रीज को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू गो आउट इन द फील्ड, ठीक है। आप कुछ नहीं भी सीख रहे हैं ना, अगर आपको लगता है, तो आप लोगों के मत्थे लगना सीख रहे हो, आप लोगों से बातचीत करना सीख रहे हो, becoming more observant. हाँ, आप कम से कम अपने वो जो 4 दीवारी, आप अपने एक शेड से बाहर निकल रहे हो, आप वहाँ पे समझते हो कि आई एम द बेस्ट, ठीक है, आई एम द टॉप ऑफ top of everything. You know, I kind of felt like that कि when you're sitting at home, you have like a very close-minded kind of opinion. But when you go out, you're like, there's actual competition, there's actual things, there are actual people, there's actual things going on. Things going on. आप देखते हो कि आपसे भी ज़्यादा बेस्ट लोग बाहर हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनसे आपको ये मैं आपको यही बात कहती हूँ मनाहिल कि 15 to 20 years आपको जो बाहर अच्छे लोग मिलेंगे, जो भी अच्छा बंदा नज़र आए, just stick to that person कि यार इस बंदे के जो है ना, मैंने आई वॉन्ट टू लर्न हिज वर्क एथिक्स, आई वॉन्ट टू लर्न कि वाई इज ही दैट पर्सन सक्सेसफुल। अगेन वही बात आती है, दिस इज, हम बहुत इसमें हो जाते हैं कि यार सक्सेस क्या है, बट कि अगर आप हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलो तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। ज़्यादा भी ना भागो सक्सेस के पीछे, ज़्यादा भी ना, but I think अपने आप को ग्रो करने का सोचो कि मैं बेहतर होता हूँ। जो मुझे लगता है कि लोगों ने सक्सेस का डेफिनेशन बनाया है कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए 5-6, गाड़ी आ जाए, पैसे आ जाए, बड़ा घर आ जाए, that is like their end goal of success, ठीक है। but I feel like कि जो बंदे पे डिपेंड करता है कि उनके सक्सेस की, अगर if they want to make a big post in a company, then that's their success. If they want to become a good artist, that's their success. If they want to publish a book, that's their success. If they want to, अगर कोई और बड़ा milestone उन्होंने achieve करना, then that's their success. So ये नहीं success हम हर किसी के लिए हम एक नहीं रख सकते। Success is subjective. It's not like fixed. Okay. Thank you so much, Manahil. I think
लोग कहेंगे बस बातें करी जा रही हैं, इसलिए आई मेड दिस वीडियो लिटिल, आई लेट दिस वीडियो गो अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि मनाहिल बड़ी मुश्किल से हाथ आती है मेरे। आज भी सुबह कहती हम शाम को बना लेंगे, हम शाम को बना लेंगे, हम कल बना लेंगे। I don't talk like that. Okay, Are thank you. you gonna pay me after this video? देखा देखा, I have to pay for everything. Like इसको एक मेरी तरफ से ओपिनियन ये है कि इसको भेजने का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भेजने के बाद जो हमने चीज चेंज देखा है ना, हम कुछ भी कहते हैं तो शी बी लाइक हाउ मच आर यू गोना पे मी फॉर दैट, वीडियो एडिट कर दो यार, थंबनेल बना दो, हाउ मच आर यू गोना पे मी फॉर दैट। You know, because you have, if you're good at something, never do it for free. Because I'm good at sitting here talking. I'm not gonna do it for free. Okay, let's see. चलो हम अफ्तारी में तुम्हें कुछ अच्छा सा बना। Okay, thank you so much guys for listening to us and you have a great day. Bye.